Today is 2nd of December and I woke up at 6 am. Actually I'm trying to gradually wake up early day by day, and my plan is to wake up early every day around 5 to 5:30 am, and I don't know why but मेरे को like स्टडी टेबल पे बैठते बैठते इतना ज़्यादा टाइम हो गया, एंड यू कैन सी कि एग्जैक्टली में समय कितने बज रहा है, 6:49 AM. सो कल मेरा AI का एग्ज़ाम है, एज़ यू ऑल नो. सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग AI, बिकॉज वो मैं थोड़ा बाद में पढ़ूँगी, उससे पहले आई थॉट टू स्टडी साइंस बिकॉज मुझे ये पढ़े हुए बहुत दिन हो गए थे. एंड आई थॉट टू डू द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, बिकॉज अगेन ये वाला चैप्टर मैंने एकदम से क्रैम कर गई थी मैं इस बार के प्री बोर्ड्स में. एंड आई डोंट नो वाई बट मैं इसके बार बार फॉर्मूलेज एंड इसकी चीज़ें भूलती जाती हूँ, बिकॉज अगेन आई डोंट डू रिविजन. मैं हमेशा कहती हूँ सबको रिविजन करो, बट मैं खुद नहीं करती हूँ, जो कि बहुत बुरी आदत है. सो इधर मैंने सोचा कि मैं अपने रिविजन नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ इसी के साथ, ताकि मुझे बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़े या फिर NCERT नहीं खोलनी पड़े. डैट्स वाई मैं इधर वो प्रिपेयर कर रही थी, एक नॉर्मल सी रिविजन वीडियो देखते हुए. I really regret not doing this in the starting of my 10th grade only. For example, like making notes, formula sheets, revision notes. But still, I have enough time to do it. So yeah, here I am doing it, making notes. And I really think you guys should also make these revision kind of notes. So अगर कोई आपको कहता है कि tomorrow is your exam and you have only one day to prepare for it, so आप अपनी ये रिविजन वाली शीट्स को पढ़ के, सिंगल शीट्स को पढ़ के, यू कैन ईज़िली स्कोर गुड मार्क्स. एंड टू बी स्पेसिफिक, मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह मेरे को भी फॉर्मूलेज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जा रही थी, स्पेशली एसिड बेसिस वाले चैप्टर में एंड मेटल्स और नॉन मेटल्स में. आई डोंट नो वाई बट आई नो कि लोग मुझे इसके ऊपर बहुत बुरा बोलेंगे, बट आई वुड चूज़ organic chemistry rather than this inorganic chemistry. I hope I'm saying this right कि inorganic है, but हाँ, I would prefer carbon and compounds chapter over this. I think if I revise this sheet daily in the early morning, so मेरे दिमाग में ये बैठ सकती है easily. And हाँ, I hope you get my point what I'm trying to say. In these pre-board exams, I was able to do all the questions related to this chapter, but still I'm not satisfied with myself. मैं जब तक सब कुछ अच्छे से नहीं पढ़ लेती, I can't get satisfied. And again इसके बाद तो still मेरे को इसके क्वेश्चन आंसर्स अलग से सॉल्व करने हैं, बिकॉज मैंने नहीं किए हैं सॉल्व. सो या हाँ, मुझे करने हैं. The day the topic neutralization reaction that ma'am taught us, I wasn't present. So next day she was like, okay, neutralization reaction as you read, na. I wasn't able to get a single word until I read all the thing, because I was like, अरे ये क्या होती है. It's not like कि I didn't study it, but I didn't know that acid plus base जो भी reaction करते हैं, that is called neutralization reaction. I didn't know. And in the whole class I was feeling so dumb कि आरोही तूने पढ़ा, but still you don't know this. But since I have revised this chapter 2 times now, I think I have got a hold of this a bit, I think. And to be honest, this was a lecture of around 25 to 30 minutes, and it actually took me more than 1 hour to do so. I know, but हाँ ठीक है, मैं नोट्स भी बना रही थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा था, but I guess it's still a bit much according to this chapter. Also, if you might wonder that how am I making these notes, so I was just watching a revision series, ठीक है, and उसमें जो भी वो बता रहे थे उसके बस में I was just noting down the keywords, so that जब भी मैं ये रिवाइज करूँ, कीवर्ड्स पढ़ने के बाद होल थ्योरी गेट्स रिवाइज्ड इन माई माइंड, बिकॉज हमने पढ़ तो रखा है, सो उस कीवर्ड से पूरा आपको याद आ जाएगा, राइट. बट व्हेन ये सॉल्ट्स वाला टॉपिक आ गया था ना, जिसमें हमको प्रिपरेशन वो सब लिखनी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह की, वॉशिंग सोडा की, उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखनी थी कि it was looking so untidy, and I don't think I'll be able to revise from this sheet, because पता नहीं कुछ ऐसा होता है माइंड में सेट कि अगर कुछ इस टाइप का बहुत कॉम्पैक्ट सा दिख रहा है, बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, सो माइंड विल गेट ऑफ
off of it, and like you won't be able to read it and like won't be interested in reading it. I hope you get my point. That's why उसके बाद मैंने इसको थोड़ा like table वगैरह बना दी थी and मैंने colourful भी कर दिया था. And Arohi, tomorrow is your AI exam, so yeah, study that also, because like, don't let it feel lonely, na. And here I have my AI notebook in which I haven't even written a single word, okay. Like I thought to make my notes in it, but yeah, I am that person. जब तक deadline नहीं आती, जब तक बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाता, तब तक you don't do things. So I finally thought to like मैं notes भी बना लूँ साथ साथ में, and like मैं उसके साथ साथ पढ़ भी लूँ. इसलिए मेरे को इतना कम लिखने में भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था. Like I was writing 2 to 3 lines, but it was taking me around 5 minutes to do so, because I was studying that also and like memorizing it. And you know, these days there aren't even like that much videos of AI on YouTube, code 417. Like वीडियोस तो है बट उतनी अच्छी नहीं है. सो हियर मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट पे नोट्स खोल लिए थे. इवन अच्छे नोट्स भी नहीं मिल रहे थे. लाइक यू हैड टू लाइक गेट अ प्रीमियम फॉर इट. सो एंड कैन यू इमेजिन दैट आई डोंट इवन हैव माई बुक फॉर AI. सो लाइक मैम सेंड्स पिक्चर्स ऑफ हर बुक, ठीक है. एंड वो मैं एक PDF खोली थी, लाइक स्प्लिट स्क्रीन मैंने कर रखा था, एंड मैं उसके नोट्स भी देख रही थी ऑनलाइन वेबसाइट से, एंड लाइक बुक के पेजेस भी पढ़ रही थी मैं. सो साथ साथ में मैं करके मैंने किसी तरह ऐसे इसको नोट्स बनाए, एंड साथ साथ में मैं मेमोराइज भी करते हुए चल रही थी. द सिलेबस इज़ ऑफ 9th क्लास ओनली, एंड सारे चैप्टर्स वही है 9th क्लास के, बट बस थोड़ा बहुत चेंजेस है. लाइक हल्के कि हमारे कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, वो कितने मार्क्स के, तो उसके हिसाब से मैं पढ़ाई करूँगी. सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन चैप्टर मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था, एंड ये लोग सिर्फ 2 मार्क्स में दे रहे हैं बिकॉज वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आता है. आई डोंट नो वाई. एंड हियर आई टुक अ बाथ, एंड बीच की क्लिप्स गायब है बिकॉज आई टुक बाथ बिकॉज मैंने लाइक 15 मिनट्स में आई रोट 3 पेजेस, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. So today I had my last pre-board exam, AI, and I'm done with my pre-board 1. I am happy. In 23 days. It took us 23 days to give 6 exam. But anyways, I have my next pre-boards from 10th of December. Okay, so I don't have much time left. I don't know what I will do. Okay, so talking about today's exam, AI, I won't say anything. No comments. Kidding, yaar. Obviously, I'll tell. So, first of all, I wasn't feeling well. I couldn't stand it. I couldn't sit on that bench any more minute. So, मेरा जो AI का एग्ज़ाम होता है ये 50 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का, ठीक है. एंड आई रोट ऑल ऑफ इट इन अंडर 30 to 35 minutes. Yes, you are hearing that right. मैंने MCQs कर लिए. इट्स नॉट लाइक मैं कोई क्वेश्चन छोड़ कर आई हूँ, बट ठीक है, मैंने वो MCQs कर लिए. मोस्टली MCQs होते हैं. फिर 2 मार्कर्स भी कर लिए, 3 मार्कर वगैरह जो भी थे. आई डिड लाइक ऑल ऑफ देम. बट जो 4 मार्कर्स के थे, लास्ट में 3 क्वेश्चन हमको करने थे आउट ऑफ 5. उसमें मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था लिखने का. आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप माई हेड डाउन लाइक दिस एंड स्लीप और लाइक टेक अ नैप फॉर अ बिट. So I guess I can get okayish marks in this because usually मेरे AI में अच्छे आते हैं, but I guess इस बार बस okayish marks आए शायद. But ठीक है, this was an exception. So yeah, that's it for today's video. मेरे next भी boards भी शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए भी थोड़ी पढ़ाई मैं कर लूँगी, but not from today. At least not today. So yeah, thanks for watching. Bye bye.